Hello friends, welcome to HP Weband Academy. In the last series of lecture, we are discussing the second order linear differential equation with variable coefficient. What we have seen that there are four methods for solving the problems based on second order linear differential equation with variable coefficients. Okay, so in the last series of lecture, we have discussed the first method as well as the second method, and this is the third one, that is change of independent variable. So let us discuss this. Okay, so we have, this is the change of independent variable. Why we are calling this as change of independent variable? Because we are changing the independent variable, that is x, in this particular equation to z. Z is the independent variable in this particular equation. Okay, so this form is getting changed to this form. Okay, using the relation, that is z is equal to f of x. Okay, the change of independent variable x to z using the relation z is equal to f of x. This means z is the function of x. Okay, so this is our, so the basic the concept here is that we have to change from this form to this form. Okay, so that's why it is called as change of independent variable, because we are changing x to z. X is the independent variable in this particular equation and z is the independent variable in this particular equation. So x is getting changed to z. Okay, that's why it is known as change of independent variable. Okay, so here we have the variables as p and q. Okay, and in this particular form, that is changed form, we have the variables as p1 and q1. So p1, q1 and r1 is given by this particular expression. Okay, so this is p1 is equal to d2z upon dx square plus p times of dz upon dx whole square. Similarly, q1 is equal to q upon dz upon dx whole square, and r1 is equal to r upon dz upon dx whole square. Okay, and the trick here is that q1 is equal to constant part of q. Okay, let us take this particular equation. So here this is our q, 2 times of sine square x. So q1 will be 2, because 2 is the constant part of this one, 2 times of sine square x. Okay, so that's why we will take q1 as 2. Okay, let us solve these questions for the ease of understanding. Okay, so we have the question number 1. देखो अभी इस पर्टिकुलर इक्वेशन और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करो. तो द कोफिशिएंट ऑफ d2y upon dx square is 1. So but here we have x, so we will divide with x throughout the equation. So we are having this as d2y upon dx square minus x से पूरे में डिवाइड करना है, तो 1 upon x dy upon dx minus 4x square y is equal to 4x square sin square x, sin x square. Okay, so now we have, this is our p, this is our q, and this is our r. Okay, and this particular equation is getting changed to this one. X is getting changed to z. That's why we are calling this as change of independent variable. X is the independent variable here, and we are changing x to z. Okay, so the independent variable x is getting changed to independent variable z. ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे. देखो, तो d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 टाइम्स ऑफ dy अपॉन dz प्लस q1 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू r1. समझ में आ रहा है? तो देखो p1 की वैल्यू कैसा आएगा, p1 इज इक्वल टू d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p टाइम्स ऑफ dz अपॉन dx. ओके, अपॉन dz अपॉन dx होल स्क्वायर. q1 की वैल्यू कहाँ से आएगा, q1 इज इक्वल टू q अपॉन dz अपॉन dx होल स्क्वायर, और r1 इज इक्वल टू r अपॉन dz अपॉन dx होल स्क्वायर. ओके, तो द ट्रिक हेयर इज डैट, देखो अब q की वैल्यू क्या है, q इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर, और q1 क्या होता है, q1 ट्रिक से क्या आता है, देखो कांस्टेंट पार्ट ऑफ q इज इक्वल टू कांस्टेंट पार्ट ऑफ माइनस 4x स्क्वायर. तो इसका कांस्टेंट पार्ट क्या है, -4, तो q1 की वैल्यू होगी -4, तो q1 की वैल्यू होगी -4. समझ में आ रहा है? तो -4 इज इक्वल टू, इसमें रखो q की वैल्यू क्या है, -4x स्क्वायर अपॉन dz अपॉन dx होल स्क्वायर. तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, dz अपॉन dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आएगा, dz अपॉन dx इज इक्वल टू x. Let us further solve this. So we have dz is equal to x times of dx. तो यहाँ से क्या होगा, z is equal to x square upon 2. तो x square is equal to 2z. ठीक है, तो q1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, q1 is equal to -4.
Q1 इज इक्वल टू -4 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2z, ओके, और dz अपॉन dx, dz अपॉन dx, dz अपॉन dx इज इक्वल टू x, और d2z अपॉन dx स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो P1 की वैल्यू निकालो। P1 इज इक्वल टू d2z अपॉन dx स्क्वायर इज 1 प्लस P टाइम्स ऑफ P की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन एक्स। P इज इक्वल टू -1, ये -1 अपॉन एक्स P की वैल्यू है ना, इंटू dz अपॉन dx, dz अपॉन dx x है, अपॉन dz अपॉन dx x स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब ये कैंसिल हो गया, 1 - 1 0, तो P1 का वैल्यू हो गया 0, ठीक है। Q1 की वैल्यू -4। अब R1 की वैल्यू निकालो। R1 इज इक्वल टू, R की वैल्यू क्या है, 4x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन dz अपॉन dx दैट इज एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो R1 की वैल्यू 4 साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है? R1 की वैल्यू, R1 इज इक्वल टू 4 साइन एक्स स्क्वायर। So now we have to convert this form into this form. So let us put the values of this. So we have d2y upon dz square, d2y upon dz square plus p1 की वैल्यू तो जीरो ही हो गया, तो ये dy अपॉन dz वैनिश हो गया। तो उसके बाद q1 की वैल्यू -4 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू r1 क्या है, 4 साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2z है, बिकॉज वी आर चेंजिंग दिस टू from x to z. X is the independent variable in this particular form and z is the independent variable in this particular form. So we are writing in this particular form. So that's why we have to replace x with x. We have to replace x in terms of z. Okay. So this is 4 sin x square, and x square की वैल्यू क्या है, 2z है ना, तो 4 sin 2z. ओके, तो देखो ये हो गया d स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 4 sin 2z. Okay, so this is the second order linear differential equation with constant coefficient. इसमें तो कंसेप्ट यही है ना कि वेरिएबल, वी कन्वर्ट दिस वेरिएबल्स p एंड q टू द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिए। अब देखो इसमें क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से होगा m इज इक्वल टू +-2। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, yc इज इक्वल टू c1 e टू द पावर 2x, z के टर्म्स में है ना, c1 e टू द पावर 2z प्लस c2 e टू द पावर -2z, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई क्या हो जाएगा, yp इज इक्वल टू 4 साइन 2z अपॉन दिस इज डी स्क्वायर -4। इसमें क्या करते हैं, डी स्क्वायर की जगह -2 स्क्वायर रखना होगा, तो yp इज इक्वल टू 4 साइन 2z अपॉन -4 तो -8, तो yp इज इक्वल टू -1/2 साइन 2z। समझ में आ रहा है? लेट अस राइट डाउन हियर, तो y इज इक्वल टू CF प्लस पी आई, ठीक है, इज इक्वल टू c1 e टू द पावर 2z प्लस c2 e टू द पावर -2z और -1/2 साइन 2z, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2z की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो रिप्लेस करो यहाँ से, c1 e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस c2 e टू द पावर -x स्क्वायर -1/2 साइन 2z की वैल्यू एक्स स्क्वायर, ये हो गया y। दिस इज द general solution of this particular equation. Okay, now let us discuss question number 2. देखो इसमें भी क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो cos x से थ्रू आउट डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज tan x टाइम्स ऑफ dy अपॉन डी एक्स माइनस
2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 2 cos 4x। समझ में आ रहा? तो ये मेरा हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ठीक है। अब P1 की वैल्यू देखो, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया Q1, Q1 निकालना है ना। Q1 क्या करते हैं, कांस्टेंट पार्ट ऑफ Q, ठीक है। Q की वैल्यू क्या है, -2 cos स्क्वायर एक्स, तो इसका कांस्टेंट क्या है, -2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से -2 इज इक्वल टू -2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन dz अपॉन dx होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, dz अपॉन dx इज इक्वल टू cos x। समझ में आ रहा? तो dz की वैल्यू क्या आ जाएगा, cos x dx, तो यहाँ से z इज इक्वल टू साइन एक्स, जेड की वैल्यू साइन एक्स आएगा। और डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। समझ में आ रहा है? तो देखो, तो उससे क्या आएगा देखो, अब Q1 की वैल्यू क्या हो गया, -2, ठीक है। अब P1 की वैल्यू निकालो, P1 इज इक्वल टू डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, प्लस P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू tan x टाइम्स ऑफ डी जेड अपॉन डी एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स क्या है, cos x अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स। अब देखो tan x टाइम्स ऑफ cos x क्या होगा, sin x होगा, तो sin x लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0, तो P1 की वैल्यू 0 आ गया। अब देखो R1 की वैल्यू क्या आएगी, R1 इज इक्वल टू R अपॉन डेट इज 2 cos 4x अपॉन dz अपॉन dx होल स्क्वायर, तो dz अपॉन dx cos x है, तो ये हो गया cos स्क्वायर x, ये हो गया 2 cos स्क्वायर x, ये वैल्यू होगी R1 की, है ना। और z की वैल्यू क्या है, sin x। समझ में आ रहा है? तो इसको cos स्क्वायर एक्स को हमें z के टर्म में लिखना होगा। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यह जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये हो गया R1, ठीक है। तो लेट अस राइट डाउन द इक्वेशन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, ठीक है। तो R1 की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर, है ना। और जेड इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना। अब देखो, तो डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, P1 की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस Q1 की वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा यहाँ से, m स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, है ना। अब यहाँ से क्या आएगा देखो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, वाई सी इज इक्वल टू C1 e टू दावर √2 जेड प्लस C2 e टू दावर माइनस √2 जेड, ठीक है। और पी आई पार्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर -2, okay. Let us find this value of particular integral. तो देखो वाई पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो वाई पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर -2, ओके। तो यहाँ से देखो इसमें क्या करते हैं, -2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन -2, दिस इज 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2, ओके। एंड दिस इज माइनस, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस होने के बाद क्या होगा देखो, जेड स्क्वायर -1 अपॉन 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2, okay. So yp is equal to this, we can write as 1 minus d square upon 2 minus 1 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर -1, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2
माइनस डी टू द पावर 4 अपॉन 4 लाइक दिस, और ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब जेड स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स ऑफ 1 और 1 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1, सो दिस इज जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और डी टू द पावर 4 होने पे तो ये जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा देखो, जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस हाफ ऑफ डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ जेड स्क्वायर डी स्क्वायर ऑफ जेड स्क्वायर, क्या हो जाएगा देखो डी ऑफ 2z, और दिस इज 2 इंटू 2, तो ये कैंसिल होने के बाद 1 आ जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, ये आ गया -1 और ये +1 कैंसल्ड, सो दिस इज जेड स्क्वायर, तो वाई पी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। Okay, so we have the general solution y is equal to complementary function plus particular integral. So this is nothing but this is this one c1 e to the power root 2z. Okay, c1 e to the power root 2z plus c2 e to the power minus root 2z plus z square. This is y. Y is equal to c1 e to the power root 2 times of z की वैल्यू क्या है sin x plus c2 e to the power minus root 2 sin x plus z square is sin square x. This is our y. समझ में आ रहा है, तो z की जगह हमने क्या रख दिया sin x. ओके, so this is the general solution of this particular equation. Okay, now let us discuss question number 3. Let us discuss question number 3. Okay, इसमें क्या है, d2y upon dx square plus 3 sin x minus cot x dy upon dx plus 2 sin square x into y is equal to e to the power minus cos x sin square x. ठीक है, कैसे करोगे इसको देखो, दिस इज आवर p, दिस इज आवर q, दिस इज आवर r. ठीक है, अब q1 की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट पार्ट ऑफ 2 sin स्क्वायर x मतलब 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x अपॉन dz अपॉन dx होल स्क्वायर. ठीक है, तो 2 से 2 कैंसल, तो dz अपॉन dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से क्या आएगा dz अपॉन dx इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे dz की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन एक्स dx इंटीग्रेशन, तो z इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स. ओके, अब dz अपॉन dx इज साइन एक्स, तो d2z अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स. ओके, तो q1 की वैल्यू हो गई, q1 की वैल्यू 2. ठीक है, और यहाँ से z इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, dz अपॉन dx इज इक्वल टू dz अपॉन dx साइन एक्स, और d2z अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स. ठीक है, अब देखो p1 की वैल्यू निकालो, p1 इज इक्वल टू d2z अपॉन dx स्क्वायर दैट इज कॉस एक्स प्लस p टाइम्स ऑफ p की वैल्यू क्या है 3 sin x माइनस कॉट एक्स टाइम्स ऑफ dz अपॉन dx इज sin x अपॉन dz अपॉन dx होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर एक्स. तो यहाँ p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो यहाँ पे cos x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स क्या हो जाएगा cos x अपॉन साइन एक्स, दिस इज cos x.
अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो cos x से cos x कैंसिल और 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये 3 हो गया। तो P1 की वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, P1 की वैल्यू 3, Q1 की वैल्यू 2। अब R1 की वैल्यू निकालो। R1 इज इक्वल टू R की वैल्यू e टू द पावर माइनस कॉस एक्स टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन dz अपॉन dx। dz अपॉन dx इज साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स, दिस गेट्स कैंसल्ड। और z की वैल्यू क्या है, माइनस कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर z, है ना। तो R1 की वैल्यू आ गई z, e टू द पावर z। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन आ गया ये वाला, here we are changing this particular equation to this particular equation. Okay, here the independent variable that is x is getting changed to independent variable z। x कहाँ पे चेंज हो रहा है, z में चेंज हो रहा है। ठीक है, और p चेंज हो रहा है p1 में, q चेंज हो रहा है q1 में, r चेंज हो रहा है r1 में। ठीक है, so p1 की वैल्यू 3, q1 की वैल्यू 2, r1 की वैल्यू e to the power z। So let us put the value of p1, q1, r1 in this particular equation. So we have d2y upon dz square plus 3 times of dy upon dz plus 2 times of y is equal to e to the power z। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर z। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा m प्लस 1 टाइम्स ऑफ m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m इज इक्वल टू -1 और -2। तो यहाँ से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yc इज इक्वल टू c1 e टू द पावर माइनस z प्लस c2 e टू द पावर माइनस 2z। ओके, और पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, yp इज इक्वल टू e टू द पावर z अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर z अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 2। ये हो गया e टू द पावर z अपॉन 6। ठीक है ना। और z की वैल्यू क्या होगा, z की वैल्यू है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स इसमें रखना पड़ेगा। तो देखो, तो टोटल सॉल्यूशन दैट इज y इज इक्वल टू yc प्लस yp, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। दिस इज इक्वल टू c1 e टू द पावर माइनस z प्लस c2 e टू द पावर माइनस 2z। ओके, प्लस e टू द पावर z अपॉन 6। दिस इज इक्वल टू c1 और z की वैल्यू माइनस कॉस एक्स, तो e टू द पावर कॉस एक्स प्लस c2 e टू द पावर 2 cos x प्लस e टू द पावर z की वैल्यू माइनस कॉस एक्स अपॉन 6। दिस इज y, दिस इज द general solution of this particular equation. Okay, so we have discussed this change of independent variable in detail. Okay, now in next particular lecture we will discuss variation of parameter method. Thank you.